एक जजमेंट तो आप फुल कॉपी कर भी पाएंगे, पूरा सॉफ्टवेयर कॉपी कर सकते हैं? यू कांट। वो इंस्ट्रक्शन मैनुअली क्रैश हो जाएगा, वो कहेगा भाई क्या कर रहे हो, माफ करो, नहीं इससे ज़्यादा नहीं बता सकते। तो ये जो आपको कॉपिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी कॉपिंग की एक्सरसाइज को लिमिट करते हैं। यू कांट कॉपी द एंटायर थिंग। Another method of DRM is encryption, which we just discussed. तब जब जापानीज इंजीनियर ने किया था वो हार्डवेयर की तरह से किया था, अब सॉफ्टवेयर भी एनक्रिप्शन के आ गए। अगर आप कई बार किसी पीडीएफ फाइल को खोलना चाहें तो वो अजीब सी लैंग्वेज आ जाती है, आपको यही समझने में बहुत देर लगेगी कि ये चाइनीज है कि जर्मन है कि क्या है ये, बिकॉज दैट इज एनक्रिप्शन। और अगर आपके पास उसको डिक्रिप्शन का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कोशिश करते रहिए, वो एनक्रिप्टेड स्क्रिप्ट ही आएगी एंड यू विल गेट टू नो नथिंग व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। सो देयर आर एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स नाउ as against that hardware thing, and decryption softwares now, where if you have that software then only you can decrypt it and get the content of the document. If you don't have that decryption then that software will be encrypted and you will not get to know the contents of that software or that page which you have opened. The next method is regional lockout. This was experimented by Microsoft, because Microsoft was a giant in the field of computers and were catering to the demands of various parts of the world, and they found it very difficult to have the whole world lockout system, because they realized that there are different regions and those different regions have different types of demands. So they developed this DRM method of regional lockout. They have divided the world into regions, and suppose Indian subcontinent के लिए कोई product है तो Indian subcontinent को उन्होंने एक region माना, और जो चीज़ US में available है वो Indian subcontinent में locked out है। That if you want कि मुझे वो US वाला भी चाहिए, then you have to open that lock and you have to pay for it. So that is called regional lockout. अलग अलग regions को divide करके उनकी requirement के हिसाब से, payment expect करने के हिसाब से regional lockout system लाए। So that is another method of DRM, digital rights management, adopted by Microsoft. The next is anti-tempering. Now this is very commonly known that you can't temper a software. आप कई बार देखेंगे कि बहुत सारे लोग कॉपीराइट को सर्कमवेंट करने के लिए चीज़ों को कॉपी करते हैं और उसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, चीज़ों की लैंग्वेज बदल देंगे, कर देंगे, एंड देन दे वांट टू प्रोजेक्ट इट एज देयर ओन. This is called tampering with the original document. So that is why another method of DRM was evolved where the original product cannot be tampered. That is called anti-tampering. The product will remain the product of the owner, and if you want to use it, you will have to pay the royalty to the owner. You can't tamper with it and project it as your own. जैसे in one of the cases, a very innovative man tried to take advantage of the logo of Godrej. उसने बड़े गौर से गोदरेज के लोगो को देखा और उसने पाया कि बाकी सब तो ठीक है, जी थोड़ा सा एक्सेप्शनल है. आप अगर देखें जी ऐसे करके गोदरेज का आता है, रेस्ट ऑल इज ठीक है. इनोवेटिव माइंड देखिए कैसे काम करते हैं, एंड दैट इज व्हाई लॉ हैज टू डू अ लॉट ऑफ कैचिंग अप.
उसने अपने प्रोडक्ट का नाम लिखा गोदरेज, सेम जी बट डी को एल कर दिया. रेस्ट ऑल fonts are same, everything is same. Godrej became Godrej. And all the lockers, almirahs, steel products looked identical. कोई भी कस्टमर लेंस लेके नहीं जाता प्रोडक्ट देखने खरीदने, देखें जरा क्या है, ऐसा कोई नहीं. Newton madam was talking about Reebok. स्टेशन के बाहर रीबॉक मिलते हैं, आप लेंस लेके कहां देखते हैं. नाइकी भी मिलता है, सब कुछ अवेलेबल है. और अगर आप देखेंगे तो कमाल की बात यह है कि दे आर नॉट, नोबडी इज बॉदर्ड कि नाइकी का जो राइट टिक है वो उल्टा है. पकड़ने के, अरे साहब मेरा तो उल्टा है ना, आपका तो सीधा है, मैं तो उल्टा काम ही कर रहा हूं तो उल्टा है. सीधे वालों का वो उधर है. दिस इज द वे पीपल डू. But fortunately, our courts are quite vigilant. And this Godrej fellow was finally caught. And when he said that this is not Godrej, I have written Godrej, how could you punish me? The court said that even resemblance is punishable. That is called infringement of the copyright. So now, the law is not limited to identical, but even a resemblance to it is a violation. And that concept has also been brought into DRM. And that is why anti-tampering. कि आप छोटा मोटा टेम्परिंग करके ये नहीं बोल सकते कि ये तो मेरा है. This is not a violation of digital rights. No, it is. And that is why anti-tampering. DRMs are also available nowadays. Now moving ahead, there is also a concept called tracking. ये भी DRM का एक अनोखा मेथड है. अगर आप ट्रैकिंग में देखेंगे तो दो तरह के ट्रैकिंग मार्केट में प्रेवलेंट हैं. पहला है वाटरमार्किंग. अगर आप बॉम्बे हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर या जजमेंट जो अपलोडेड है बॉम्बे हाई कोर्ट की साइट पे या सुप्रीम कोर्ट की साइट पे, उसको डाउनलोड करेंगे तो यू विल फाइंड पीछे एक वाटरमार्क होगा, हाई कोर्ट लिखा है या सुप्रीम कोर्ट लिखा है. दैट इज कॉल्ड वाटरमार्किंग. बाय वाटरमार्किंग you are tracked who's downloading. So that tracking system is another system of DRM. Digital rights are managed, because now, unlike other time when you were supposed to apply for the copy of the order, now it is uploaded already and you have a device to download it. So whether this document is genuine or not, how will you come to know? And that is why there is a watermark. And by watermark, you are tracked. And these are digitally embedded within that audio or visual or paper. वो embedded होता है. आप चाहे किसी पेपर पे निकालिए वो watermark रहेगी. That is what a system called watermarking. ये CDs, DVDs पर भी होता है, सिनेमा पर भी होता है. अगर आप देखेंगे तो आजकल न्यूज़ चैनल्स भी वाटरमार्किंग यूज़ कर रहे हैं. आप कोई बड़ी भयानक सी न्यूज़ हो तो न्यूज़ चैनल वाले को लगता है कि बस मैं ही दिखा पा रहा हूँ, और वो बार बार उसको एम्फसाइज करता है, न्यूज़ छोड़िए देखिए एक्सक्लूसिव, वो पीछे एक्सक्लूसिव टैगलाइन चलती जाएगी. कई बार आप सोचते हैं भाई न्यूज़ देखें कि आपका एक्सक्लूसिव देखें. वो वाटरमार्किंग इतनी प्रोमिनेंट कर देते हैं कि न्यूज़ ही पीछे हो जाती है. और कमाल की बात यह है दैट एवरी चैनल क्लेम्स दैट दिस इज एक्सक्लूसिव. I sometimes fail to understand where is that inclusive channel.
एवरीबडी हैज एक्सक्लूसिव राइट ऑन दिस न्यूज। वो घटना जिसने अंजाम दिए वो बेचारा बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता हुआ कि यार ये सब एक्सक्लूसिव इनका है, तो मैंने क्या किया? बिकॉज दीज न्यूज चैनल्स दे वांट टू ओन अप दैट राइट ऑफ दैट डिपिक्शन। और इसी से शायद इंस्पायर होके, मुझे ऐसे लगता है, दिस इज माई कंसेप्ट, आई मे बी रॉन्ग, कि ये न्यूज चैनल की इस एक्सक्लूसिविटी से इंस्पायर होके अभी आतंकवादी भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करने लगे। अरे भाई ये बम मैंने फोड़ा, थोड़े दिन में वो आ जाता है, अभी बम फूटा भी नहीं, कई बार तो पहले ही आ जाता साहब ये, अरे वो कहाँ फूटा, फूटेगा फूटेगा, देखो थोड़ी देर बाद। दे स्टार्टेड ओनिंग अप देयर एक्ट ऑफ टेररिज्म, बिकॉज उनको भी वो एक्सक्लूसिविटी चाहिए, दे वॉन्ट दैट रिकग्निशन। क्योंकि डर का भी बहुत बड़ा व्यापार है। देयर इज अ होल बिग लॉट मार्केट ऑफ टेरर, and everybody is vying for that publicity that I am a bigger terrorist than you, and I am a bigger terrorist organization than you. And that is how, otherwise why would a criminal claim that I committed the crime? It's simply because they want to market themselves, that I am the most dreaded criminal, I am the most dreaded terror organization, we are exclusive. आप देखिए ये जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, इनके डिवाइस को एक टर्म यूज होता है आईईडी, आईईडी ब्लास्ट। ये क्या है आईईडी? हैव यू एवर बॉदर्ड टू नो? इट इज इनोवेटिव एक्सप्लोजिव डिवाइस, आईईडी। मतलब ये कि जब हम क्लेम करेंगे तो हम बताएंगे सब ये हमारा इनोवेशन है, देखिए कितना अच्छा ब्लास्ट हुआ इससे। एज इफ आपको अगर कभी ऐसा ब्लास्ट करना हो तो मेरे पास आइए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाम पता नहीं देते कि कहां जाके कांटेक्ट करें ऐसी डिवाइस को परचेज करने के लिए। आपकी आईईडी कहां मिलेगी? ऑल्दो आई एम अ विक्टिम ऑफ माई वाइफ्स आईईडीज एवरी डे, she has, unfortunately she's there. No, I may be victim again. So her IEDs are innovative every day, and I'm so surprised how innovative she is. Maybe in the future she may get a DRM on her innovative devices. You can get the pipe, pay the royalty and get those innovative methods of torturing. Moving ahead, another is metadata, another method of tracking. Apart from watermark, there is metadata where even if you're purchasing a product, that purchaser is tracked. You're legally purchasing a product, a digital product, but that purchaser is also tracked. So that means the creator or the owner of that software or the product knows who has purchased my product. So how many genuine purchasers are there about my product? That is called metadata, and there are these kind of detailing in metadata involved. These informations the metadata system requires. If you are purchasing it, you'll have to fill those. आपने देखा होगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर में एक फॉर्म आ जाता है, वो फॉर्म भरिए, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, बाप का नाम, पिता का नाम, इसका नाम, उसका नाम, अड़ोसी पड़ोसी सब बताइए, तब हम समझेंगे कि आप यहाँ पर हैं और आपका ये प्रोडक्ट आपने हमारा ख़रीदा है। और वो फॉर्म भरते ही आपके पास यू विल बी फ्लडेड विद सो मेनी अदर मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। अरे ये भी ले लो ना, अब लिया है तो ये भी ले लो, अब लिया है तो वो भी ले लो। नाउ सी, बीइंग अ लॉयर आई नो, बॉम्बे में जो बुक सेलर्स हैं
अगर आप वी नॉर्मली कीप ऑर्डरिंग बुक्स, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि फिर मेरा भी ये कॉपीराइट है, उनको फोन करो कि अरे भाई ये बुक लेटेस्ट एडिशन अवेलेबल है ना सर? हाँ तो भेज दो। एंड ट्रस्ट मी, अभी तक के मेरे अनुभव में